کہ ہم نے پرامن رہنا ہے. ہم نے ہرگز کسی تصادم کا حصہ نہیں بننا. چنانچہ ہدایات دی گئیں تمام کارکنان کو کہ وہ حکومت کے مشتعل کرنے کی کوششوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور پرامن رہنا ہے. حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور وہ تصادم چاہتی ہے اور تصادم کی آڑ میں انتخابات سے فرار چاہتی ہے. اب ہم نے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے آغاز کے لیے ایک ریلی منعقد کرنے کا فیصلہ کیا. عمران خان صاحب نے آج زمان پاک سے وقت 2 بجے ریلی کی قیادت کرنی ہے اور داتا دربار جانا ہے. اور حکومت نے سیکشن 144 کا نفاذ کر دیا, رینجرز کو ڈپلوائے کر دیا. نوٹیفیکیشنز آپ کی نظر سے گزر چکے ہوں گے. تحریک انصاف کا موقف ہے کہ یہ کارروائی بلا جواز ہے اور ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. چنانچہ آج صبح ہماری سینٹرل پنجاب کی پریزیڈنٹ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور اسلم اقبال صاحب میاں صاحب الیکشن کمیشن کے آفس میں لاہور تشریف لے گئے اور تحریک انصاف کی طرف سے انہوں نے ایک پٹیشن کی صورت میں اپنا موقف پیش کر دیا. ہمارے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب چیف الیکشن کمشنر کے دفتر پہنچے اسلام آباد میں اور وہاں بھی ایک پٹیشن داخل کروا دی. وہاں ہم نے اس کو فوری ہیئرنگ کے لیے درخواست کر دی ہے اور میرے علم کے مطابق مارک ہو گئی ہے کہ فوری اس کو سنا جائے. اسی طرح فیصلہ کیا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس کارروائی کے خلاف ایک پٹیشن داخل کر دی جائے. ہمارے وکلاء سے مشاورت کے بعد ایک پٹیشن تیار ہو گئی ہے. ہم رجسٹرار صاحب کا انتظار کر رہے ہیں. وہ جیسے آتے ہیں ہم اس ایمرجنٹ سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کلیش کو, تصادم کو, جس کی آڑ میں وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں, بہانہ بنا کر پی ایس ایل کا میچ کینسل کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور گرفتاریوں کا جواز پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کل بھی اس کو پریمپٹ کرنے کی کوشش کی اور آج بھی ہم قانونی طریقے سے اس کارروائی کو پریمپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عدالت پہ آئے ہوئے ہیں. ہماری مؤدبانہ گزارش ہوگی چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ ہماری اس پٹیشن پر فوری غور کریں. جواز یہ بنایا ہے کہ کیونکہ پی ایس ایل کا میچ ہو رہا ہے اور سیکیورٹی سچویشن ہے, سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ ہمارا روٹ کا مطالعہ کریں. جو روٹ ہماری لاہور کی لیڈرشپ نے جس کا تعین کیا ہے اس کا پی ایس ایل کی کارروائی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں جڑتا. پی ایس ایل کا میچ قذافی اسٹیڈیم میں ہو رہا ہے اور شام کو 7 بجے ہے. ہماری جو ریلی ہے شہر کے دوسرے حصے میں ایک اور سمت سے چلے گی اور 2 بجے روانہ ہوگی اور میچ کے شروع ہونے سے پہلے اختتام پذیر ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میراتھن لاہور میں ہو رہی ہے, اس کے لیے سیکیورٹی سچویشن درست ہے. سائیکل کی ایک ریلی ہے وہ لاہور میں منعقد ہو رہی ہے آج ہی, اس کے لیے کوئی سیکیورٹی خدشات نہیں ہیں. اور پی ٹی آئی کی جو پرامن ریلی ہے اس پہ سیکیورٹی کنسیڈریشن سامنے آ رہی ہیں. ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ الیکٹورل پروسیس جو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق جس کا آغاز ہوا ہے اور آج نامینیشن پیپرز فائل ہونے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے, جس کینڈیڈیٹ نے آج نامینیشن پیپر فائل کرنے ہیں, آپ یہاں کی روایت جانتے ہیں
वो जाता है, उसके प्रपोजर सेकेंडर 4 हमायती साथ होते हैं, ढोल ढमक्का सारी कार्रवाई होती है। तो इसका मतलब है वो सारे जो कैंडिडेट जिनने अपने कागजात दाखिल करने आज से, वो दफ़ा 144 के निफाज की खिलाफ वर्जी करेंगे। इसी 144 को जहाँ चैलेंज किया गया और इसी हुकूमत ने उसको विड्रॉ किया और आज फिर उसका निफाज किया। ये मैलाफाइडी है, ये बदनीयती पर मबनी है और फ़कत इसका एक मकसद है कि तहरीक-ए-इंसाफ की रैली को रोका जाए, कोई न कोई बहाना तलाश किया जाए, उस बहाने की आड़ में क्लैशेस हों, गिरफ्तारियां हों और निशाना बनाया जाए तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को। ये तुले हुए हैं, इनकी नीयतें जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह दिखाई दे रही हैं और हमने फैसला किया है कि हमने कानून और इखलाकियात से नहीं गिरना। उस दायरे के अंदर रहते हुए, पुरअमन रहते हुए हमने अपने सियासी अमल को आगे बढ़ाना है। हमारा मकसद इंतखाबात का हसूल है, हमारा मकसद अवाम का फैसला है, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ समझती है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और अवाम को फैसला करने दें और ये खवास और एक टोला जो फैसले मुसल्लत करना चाहता है ये ना हो सके। ये है हमारा मौक़िफ़ जो हम आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहे थे। सुबह 3 बजे भी किया और अब भी कह रहे हैं। शुक्रिया। सबसे पहले तो जी मैं आज सुबह हमारे जो तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल कराची अरसलान ताज घुम्मन जो हैं उनको अगवा किया गया, उसकी मैं शदीद मज़म्मत करते हैं। हम तहरीक-ए-इंसाफ उसकी शदीद मज़म्मत करती है और हम फौरी मुतालबा करते हैं कि उनको रिहा किया जाए। इसी तरह से जो वर्कर्स एंटी टेररिज्म कोर्ट में गए थे इमरान खान साहब के साथ, वो गिरफ़्तार अभी तक गिरफ़्तार हैं, उनको रिहा नहीं किया जा रहा। इस वक्त पाकिस्तान में यूँ लग रहा है कि कोई नाज़ियों की हुकूमत है, जिससे आज आप देखें कि आपको आज हमें रोका जा रहा है इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद कि हम दाता दरबार भी हाज़िरी नहीं दे सकते और इसको ऊपर भी यहाँ पे पाबंदियाँ लगा दी गई। ये अगर आप औलिया कराम के दरबार के ऊपर जाने पर भी पाबंदी है, अगर आपकी सियासी एक्टिविटी पर भी पाबंदी है, आप इलेक्शन कैसे कराएंगे, कैसे लड़ेंगे? जिस तरह से अभी शाह महमूद कुरैशी साहब ने तफसील से बताया, हमने अब तक इक़दाम क्या किए और ये अदालतें जो रात 12-12 बजे भी खुल जाती हैं, हमारी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से गुजारिश है, अभी दिन के 12 बजे हैं, आप ज़रा मेहरबानी करें, पाकिस्तान में आइन ख़तरे में है, कानून ख़तरे में है, आप ज़रा मेहरबानी करके रजिस्ट्रार साहब को कहें कि आप जाग जाएँ, 12-1 हो गया है, 1-1 बजे तक उन्हें नहीं सोना चाहिए और आके यहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें और ये जो पटिशन है हमारी 144 के ख़िलाफ़, इसको सुना जाए। अगर हफ्ते के दिन बग़ैर किसी कैबिनेट अप्रूवल के रेंजर्स भी आ सकती है, अगर बग़ैर किसी अप्रूवल के पुलिस, आपने देखा है इस वक्त जितने बड़े कंटेनर्स वहाँ पे लगा दिए गए हैं। एक तरफ नून लीग का कन्वेंशन हो रहा है इस वक्त कैंटोनमेंट बोर्ड में, कैंटोनमेंट के इलाके में, और उसके इश्तिहार चल रहे हैं, उसके ऊपर कोई 144 नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या तहरीक-ए-इंसाफ को बैन कर दिया गया है? अगर आपने इस मुल्क में बर्मा बनाना है, इस मुल्क को सिर्फ एक ही पार्टी को यहाँ पे इजाज़त है कि उसने इलेक्शन लड़ना है, तो फिर हमें बता दें 10 लाख आदमी, 10 लाख नौजवान पाकिस्तान पहले ही 10 महीनों में छोड़ गया है, अगले महीनों में इससे ज़्यादा लोग जो है वो मुल्क से चले जाएंगे। आप अकेले यहाँ पे रह लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने फैसले कर लेंगे। जिस तरीके से इस वक्त हमारे ज़िले शाह को शहीद किया गया पिछले 8 तारीख को, अब फिर वही मंजर बनाया जा रहा है। हम पुरअमन रह रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि ये हमें इंसाफ मिले, और इंसाफ के इस वक्त 2 इदारे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हमने कहा है कि आप अभी तक खड़े हुए हैं, आपने इलेक्शन करवाए हैं और हम आपसे तवक्को ये कर रहे हैं कि आप इस मामले में भी कमीशन की जो इख्तियार है उसको इस्तेमाल करेंगे, 144 जो है उसको ख़त्म करेंगे, और ये जो कातिल है, जो वज़ीर आला पंजाब इस वक्त बन के बैठा हुआ है, इससे इस्तीफ़ा लें आप। ये जो CCPO लाहौर है और IG है, ये ज़िले शाह के कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस है। आपने अभी तक इनके ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई नहीं की?
क्या आप इस कत्ल में हिस्सादार हैं? क्या ये जो सियासी कारकुनों के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके लोग क्या उसमें बाकायदा पार्टनर हैं? क्या पार्टनरशिप में चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन? हम इंतज़ार कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के इस जवाब का। इलेक्शन कमीशन को और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। हमारी पूरी तरह हम समझते हैं हम आइन के साथ खड़े हैं, हम कानून के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को बर्मा बना के चलना है, सिर्फ एक ही पार्टी को। कल रात सीनियर लीडरशिप का इमरान खान साहब की सरबराही में एक इजलास हुआ और उस इजलास में हमने ये तय किया कि हमने पुरअमन रहना है। हमने हरगिज़ किसी तसादुम का हिस्सा नहीं बनना। चुनांचे हिदायत दी गई तमाम कारकुनान को कि वो हुकूमत के मुश्तइल करने की कोशिशों को सामने रखते हुए उन्होंने सब्र